یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ میں کوئی پچھلے 15-20 دن سے اسی طرح کی میٹنگز میں مختلف جگہوں پر مصروف رہا ہوں اور اس لیے تھوڑا سا گلا، لیکن جیسے جیسے بولیں گے تو گلا رواں ہو جائے گا۔ آمین۔ تو شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے لیے جس نے یہ ممکن کیا ہے آج کی عبارت کر سکے، اور خدا کے خادم اور بہن راخل کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، ساری ٹیم کے لیے اور اس ساری ورشپ کے لیے اور آپ سب کے آنے کے لیے، دور و نزدیک کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین۔ آئیے آج اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے مقدس کلام کو کھولیں گے۔ کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب کا 22واں باب نکالیں گے۔ کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب کا 22واں باب 12ویں آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے، کیونکہ اس کنونشن کا مضمون ہے آمد ثانی۔ آمد ثانی کا کیا مطلب ہے؟ دوسری آمد، یسوع مسیح کا پھر آنا۔ تو آئیے مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی 12ویں آیت سے غور سے خداوند کا کلام سنیں۔ لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور امیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گڑنے والا باہر رہے گا۔ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات سے مفت لے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ مکاشفہ کی کتاب کا یہ پیغام بڑا خاص پیغام ہے۔ مکاشفہ کی کتاب چونکہ یہاں کلوز ہو رہی ہے، اینڈ ہو رہا ہے، اس لیے یہ بڑا خاص میسج ہے۔ اس کو بائبل مقدس کا مرکزی مضمون بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت، جب آدم سے گناہ ہو گیا، اس نے باغ کا پھل کھا لیا، سزائیں دینے سے بھی ساتھ ہی خداوند نے یہ کہا
औरत की नस्ल से एक शख्स पैदा होगा, वो आएगा। और खुदावंद का कलाम कहते हैं कि फिर मलाकी की आखिरी किताब जो पुराने अहदनामे की है उसमें भी लिखा है आफताबे सदाकत ताले होगा, यानी वो आएगा और वो आया। और फिर मत्ती की इंजील के पहले बाब में जब आप क्रिसमस का माहौल बनाते हैं, वो दुनिया में तशरीफ ले आए और आपने उसका जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हर क्रिसमस पर। और फिर जब आप इमाल की किताब पढ़ते हैं, ये हवाला जरूर पढ़िए खुदा के कलाम में कि अमाल की किताब का पहला बाब जब हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, तो खुदावन यीशु मसीह ने लिखा है कि पहले बाब को पढ़े तो उसकी 10वीं आयत पे लिखा है, और उस वक्त जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ से गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने और उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से ऊपर आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। क्या करेगा? फिर क्या करेगा? जिस तरह जब यीशु मसीह जमीन पर आए, उन्होंने 3.5 साल मुनादी की, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को पाक साफ किया और लोगों को नजात का पैगाम सुनाया। और फिर वो मुनादी करके सलीब पर वो चढ़ गए, और सलीब का दुख सहने के बाद जब वो कब्र में उतारे गए, तो खुदा का कलाम कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या किए? जी उठे। और अब 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर, लोगों पर जाहिर होते रहे। और जब 40 दिनों के बाद खुदावन यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे, तो वो गलीली मर्द शागिर्द देख रहे थे। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, जिस तरह तुम मुझे आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, इसी तरह मैं क्या करूंगा? आऊंगा। तो ये उसका वादा है कि वो क्या करेगा? वो आएगा, और जब जैसे वो आसमान पर चला गया है, इसी तरह वो जमीन पर दोबारा क्या करेगा? आएगा। और उसको कहते हैं आमदे सानी, क्योंकि ऊपर उठाया गया और फिर जो है वो जो है दोबारा जो है वो आएगा। जब हम ये मुकाशफा की किताब तकरीबन पहली सदी के अंदर ही ये तहरीर हुई, और इसको जब हम पढ़ते हैं 4थे बाब से लेकर 20वें बाब तक, तो ये बड़ी हौलनाक टेरिबल सिचुएशन पेश करती है। कभी कभी आपको वो प्याले, गजब के प्याले ऊपर से क्या करते हैं? दिखाई देते। कभी कभी घोड़ों की आवाजें आपको क्या करती हैं? सुनाई देती। कभी कभी आपको जो है वो ऐसी बातें नजर आती हैं जिससे इंसान का दिल देख जाता है, डर जाता है। और कई लोग मुकाशफा की किताब को पढ़ते नहीं है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि 4थे बाब के बाद 20वें बाब तक आपको ये चीजें मिलती हैं जिसमें खुदा का गजब नजर आता है, जहां पर जो है वो मोरें खुल रही है। और जब एक मोर खुलती तो ये होता है, आप बहुत सी चीजों को वहां क्या करते हैं। और फिर जो नए जो है आज के लोग हैं, जो नए खासकर स्कॉलर बनते हैं, और अभी 4 दिन उनको होते नहीं है, तो उनके ऊपर जो है वो स्कॉलर का बड़ा क्या होता है, माड़े बंदे नू शौक बड़ा होता है। माड़े बंदे नू शौक बड़ा होता है कि मैं किसी तरह क्या हो जाऊं, मशहूर हो जाऊं, मैं किसी तरह सामने आ जाऊं। बंदा को
घुस घुस के किसी तरह आप तस्वीर में भी देख ले तके शके ला के बंदा विच वड़न दी की करदा है, क्योंकि हर बंदा क्या होना चाहता है, मशहूर होना चाहता है। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो मैं आज इसको देख रहा था कि चौथे बाब पे कभी आप आग को देखेंगे, समुद्र को देखेंगे, प्यालों को देखेंगे, आफतों को देखेंगे और इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। जब वो चौथे बाब से पर जो है वो 20वें बाब तक पढ़ता है। और मैंने बात की थी मोहरे की कि आज नए नए स्कॉलर हैं, वो कोई आंदा 6वीं मोहर खुल गई है तो कोई 7वीं में खोल बैठा है। की ख्याल है? तो कोई भी जो है वो हमारे पास भी आते हैं। जब ये कोविड आया तो कहने लगे कई मेरे पास है, भाई जी लगता है 6वीं मोहर खोल देती है, मैं तो घर वेला बैठा मोहरा ही खोली उन्हें, क्योंकि घर वेले की कर देने मोहरे खोले हैं। और आप कभी देखे जो लोग तनकीद करेंगे, मेरी बात नोट करें, कभी खुदा का मंजा हुआ खादिम, कलाम में डूबा हुआ खादिम, रोहुल कुद्स से भरा हुआ खादिम वो ऐसी वीडियो नहीं बनाएगा। कौन बनाएंगे? है जो क्या करते हैं, वो आंदे ने कल है क्या कहते हैं जो ठीक है। तो मतलब कई लोग जो है वो इस तरह की काम जो है करते हैं। लेकिन सुनिए खुदा का कलाम, ये 20वें बाब तक आपको बड़ी टेरिबल बहुत सी सिचुएशन आपको मिलेगी जिससे आपका दिल दहक जाता है, आप डर जाते हैं। लेकिन जैसे 21वां बाब शुरू होता है तो बिल्कुल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, बदल जाती है। और 2 चैप्टर पढ़ने से इंसान के अंदर उम्मीद, खुशी, अमन, इत्मीनान पैदा हो जाता है। और मैं आज इन्हीं 2 चैप्टर्स की बात करूंगा कि क्या कुछ लिखा हुआ है। और मेरे दिल में है काश मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सैर करा दूं। किसकी? ये नए यरूशलेम की जिनकी बातें हैं वो प्यालियां ते ना रहे हो। कईयां दा ध्यान किथे हुंदा है? प्यालियां ते हैं। हमारे एक नौजवान है वो कोई ना कोई गल कढ़ लिया। एक दिन मैनू कहता है भाई जी वो कंदीना रूह केड़ी जो, मैं आख्या भी कदीना केड़ी रूह आ गई है। मैं आख्या भी मेरा तो एडा तजर्बा नहीं हो, एक दीना शदीना पतीना पदूना केड़ी रूह है, तू करे किथों कढ़ लिया। लेकिन सुने खुदा के कलाम को, खुदा का कलाम ले, ये हमारे ज़हन को ट्रैप करते हैं कई दफ़ा और हम उस तरफ नहीं जाना चाहे जो है वो नहीं जाते। लेकिन याद रहे जब आप 21वां बाब पढ़ते हैं फिर आपको नए शहर की, नए यरूशलेम की और नए आसमान की और बादशाह के तख्त की बातें नजर आएंगी। आमीन आमीन। पैदाइश की किताब में आपको मौत नजर आती है, पैदाइश की किताब में आपको क्या नजर आती है? मौत नजर आती है। लेकिन इन 2 चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है जिंदगी नजर आती है, लिखा है वहां मौत ना होगी। तो ईमानदारों, आज मैंने आपको बताना है कि ईमानदारों ठंडे ठंडे ना रहा करो। ये भी ना सोचा करो कि मेरे को इत्थे खोरे काटे ते असी इस काम च भी लगे हाँ कि एक दूजे तो अगे निकल दी की करिए, कोशिश करिए। ते हुण ते काम ही ये है कि की करो, एक दूजे तो अगे निकलो। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी कल ही प्रोग्राम हुए हैं, इसलिए प्रोग्रामों की बात नहीं मैं करना चाहता। और मौत पहली पैदाइश की किताब में आपको शैतान दुनिया पर राज, आदम पर राज करता हुआ क्या करता है? नजर दिखाता है। लेकिन जब आप ये 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो फिर शैतान जो है वो आग की झील में डाला गया। कहां डाला गया?
झील में डाला हुआ नजर आता है। और फिर जो है आप देखते हैं कि ना सिर्फ, और वहां लिखा है जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया, बदी कर ली, तो लिखा है अब जमीन तेरे स्वभाव से लानती होगी। और वहां लानत आई, और आप जानते हैं फिर कहा तू पसीने के साथ कमाएगा, खाएगा, और ये लानती जमीन होगी। लेकिन जब आप मुकाशफा की किताब के 2 चैप्टर आखिरी पढ़ते हैं तो वहां लिखा है फिर लानत ना होगी, फिर लानत ना होगी। और मैं मसीहो बताना चाहता हूं, आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनका मसीह के साथ वास्ता है, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आज शायद आप किसी मुश्किल में से गुजर रहे हो या प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आमीन। और आज हम यही आमदसानी से ये सीखेंगे। चंद बातें और भी हो सकती हैं, लेकिन ये जिंदगी की बातें हैं, ताजगी की बातें हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ, जब आपने मुकाशफा की किताब का ये मैंने हवाला पढ़ा तो मैंने खास जोर दिया था कि दुल्हन भी कहे यसू क्या ख्वाहिश है उसकी। अच्छा हाले वो पता नहीं कभी आपने देखा है, मैंने कई दफा देखा है, जब आप किसी बच्ची की शादी के दिन रखने वाले होते हैं या ओदे विआह दा ना ले लो, तो कई बच्चियां वक्त से पहले रीत बेल पहन के क्या करती हैं, कर दिया ना कि चेक। क्या मतलब उनका होता है? मैं तैयारी करूं उसको अपने दूल्हा। और ये सारी दुनिया में ये खुदा ने जज्बात ही इस तरह के रखे हैं कि इंसान या बच्चियों के दिल में या बच्चों के दिल में ये है। और मसीह को भी समझने के लिए दुल्हन की यही ख्वाहिश हो। अभी वो आने वाला है, पहले ही पापू के देखनी चाहिए रीत वेल। एक घराने दे विच जाना सी ते हाले देनी रखन दे सी, दिन मुकर्रर होण दे सी, ते उन्हें अपनी की कहंदे जो डिपी की ओदे ते लाई सी केड़ी रीत वेल दी तस्वीर। की रीत वेल दी तस्वीर क्यों? ओदे दिल च सी कि मैं एक दिन दुल्हन बन जाऊंगी। और ये खुशी की बात है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये पॉजिटिव है, कोई बात नहीं है, ये उसका हक है, ये खुदा ने उसे हक दिया है। ये कोई मैं इसको नेगेटिव पेश नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस्मानी तौर पर वो क्या कर रही है, अपने दूल्हे के लिए क्या कर रही है, तैयारी कर रही है। लेकिन क्या हमारे दिल में आए, दुल्हन भी कहे, रूहुल कुद्स भी कहे, क्या कर, तो अपनी दुआ में ये शामिल कर लें, यसू दुआ, यसू तू। साडे मसला ये है कि ईमानदारां नूं भी कई बार नहीं पता, वो जोड़ते ने यसू जदों आउणा क़यामत आउणी है, तो क़यामत दा की मतलब समझते ने, वो बर्बादी होनी है, इंज होना है, अंज होना है। पर तुहाडे नाल इंज नहीं जो होना, असीं ते हवा चुड के उहदा इस्तकबाल करना खुदा जो है। और इस बात को समझें कि ईमानदारों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा है। जो हमने हवाला पढ़ा, उस हवाले में हमने पढ़ा, देख मैं जल्द, क्या पढ़ा हमने? अच्छा, एक इसका सेंस ये भी बनता है कि मैं अचानक सडनली क्या करने वाला हूं, आने वाला हूं। जैसे मत्ती की इंजील में भी लिखा है कि जब किसी को गुमान ना होगा तो यीशु मसीह क्या करेगा, आ जाएगा। वो क्या करेगा, आ जाएगा। जब लोग कहेंगे अभी उसके आने का वक्त, और आप गीत भी गाते हैं कि उसके आने का वादा कहां गया, लेकिन वो किसी वक्त भी आ जाएगा। और एक उसकी ये भी लिखा है कि वो चोर की तरह क्या करेगा, क्या करेगा, चोर का बात है? ओ जदों गुमान भी ना आए, तो आराम ना सुते होवो
تے پتہ ہی نہ لگے کہ چور موبائل لے کے. لیکن یسوع مسیح چور نہیں ہے. وہ کس کی مانند آئے گا؟ چور کی مانند آئے گا. جب کسی کو کیا نہ ہوگا؟ گمان بھی نہ ہوگا, اور وہ آ جائے گا. اور وہ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا آنے والا ہے؟ جلد آنے والا ہے. اور کئی لوگ اس کا کہتے ہیں کہ بھائی اتنا وقت گزر گیا ہے, یسوع مسیح نہیں آئے, لیکن وہ کسی وقت بھی کیا کر سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. اور پطرس کے خط میں اس لیے نہیں جانا چاہتا, لمبا ہو جائے گا. وہاں اگر آپ جائیں تو وہاں لکھا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اس لیے, اور یہ بار بار لکھا ہوا ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے. اور لکھا ہے ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر. کیا ہے جی؟ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ تے یسوع کی دینا آ رہا جو وہ آ بھی رہا ہے, تے نال کچھ لے کے بھی آ رہے ہیں. اور کی لے کے آ رہے ہیں؟ اجر, اور ہر ایک کے کام کے موافق. آج کئی لوگ کہندے نے پادری ایویں پجے رہندے جو انہاں نوں بڑی عبادتاں دا ہوندا ہے, یہ بڑا پچھا کردے نے پائی جی تے کھیڑا ہی نہیں چھڑ دے کے دینا. لیکن ایک وقت آپ نے دیکھنا ہے ان کو آسمان سے آپ کو اجر ملنا ہے. اور دوسری بات میں اجر کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں, کبھی کبھی ہمارے دل میں ایک بات ہوتی ہے, پائی جی مجھے نہیں سرایا گیا, میں نے اتنا کام کیا ہے, بابے منو تو تیرا نام بابا ہی ہوندا ہے, تے بابے کبھی کبھی شکوے ہوتے ہیں, گلے ہوتے ہیں کہ مجھے سرایا نہیں گیا. لیکن میں آج آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں, اگر آپ کو یہاں اجر ملا ہے یا نہیں ملا, آپ کو کسی نے آگے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یسوع ناصری آسمان سے آنے والا ہے جو آپ کو اجر دینے والا ہے, اور وہ اجر آپ کو ملے گا, اور وہ آپ کے لیے ہوگا. اور لکھا ہے ہر ایک کے کام کے موافق. کام کر دے جاؤ, کام کر دے جاؤ, کیونکہ ایدہ کی ملنا جو ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں اتنا تھکا ہوا ہوں میٹنگیں کر کے کہ میں اندر سے بھی تھک گیا ہوں. لیکن یسوع نے پھر ہمت دے دیتا ہے. پھر کیا دے دیتا ہے؟ ہمت دے دیتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے, آپ کے لیے سفر کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے, کئی لوگ کہیں گے پائی جی انہاں نوں کھڑکی آگ لگی جو, انہاں نوں چین نہیں جو, اور میری کلیسیا مجھ سے سخت ناراض ہے. عظیم گواہ ہے. وجہ کیا ہے؟ میں کئی ہفتوں سے اپنے چرچ میں کلام نہیں سنا سکا. وجہ کیا ہے کہ مختلف کنونشنیں اور کروسیڈ, اور وہ جدوں سنڈے ہوندا ہے تے میں لوگ کے اتھوں نکلنا. وہ منو پتا کی آندے نے جڑے بزرگ, پائی جی آج پھر اڈن لگے جی, پھر تے نال واندے نے دوجیاں نو تسی کورمے تے شورمے اور کی تے پیزے کھواؤں دے جو, تے سانو سکیاں روٹیاں تے رکھے آج. میں کہا تیانوں بھی اجر ملے گا تھا. کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. خداوند تمہیں اجر دے گا. وہ بھی قربانی کر رہے ہیں. میں کلیسیا کو بھی سراتا ہوں, وہ بھی قربانی دے رہے ہیں, کیونکہ وہ مجھے جو ہے وہ پے کرتے ہیں, وہ مجھے لاکھوں روپیہ دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے ہر ضرورت کو پوری کرتے ہیں. اب نہ مجھے کوئی چرچ کا بل دینا ہوتا ہے, نہ میں نے کوئی پانی ڈلوانا ہوتا ہے, نہ میں نے کوئی کرنا ہے. وہ سب کچھ کس کا ہوتا ہے؟ چرچ کا. کیونکہ شہروں کے چرچ فرق ہیں, اور جو ہے ان کا, اور مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کا جو ہے کوئی میں نے یہ کام کرنا ہے, لیکن پھر ان کا حق تو ہے نا. لیکن پھر بھی مسیح کی خاطر ہم جو ہیں وہ باغے پھر رہے ہیں, اور چین نہیں ہیں, تھکے بھی ہوتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا, لیکن پھر بھی خدا کا کام ہے, کیونکہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے کیا ہے؟ پاس ہے. تے تیانوں مل جانا جو. یسوع آ بھی رہا ہے تے کچھ کیا ہے. چلو تھوڑا جہا بچیاں بھی خوش کرنا چاہیے. ہن میرا کلام دا سٹائل انج دا ہے, وہ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਥੈਲੀ ਨਾ ਸ਼ੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ है। मेरी बच्चियाँ जवान है तो वो कैमरे लगे हुए हैं, जैसे मैं नीचे आता हूँ तो पहलो वेंदियां ने कि पापे दे हाथ च कोई है, लेकिन पापे दे हाथ च होवे ते भावें ना होए, साडे यस्सु दे हाथ च जदों आउणा जो हर एक के लिए अजर मौजूद है, और वो आपको अजर देगा हर एक काम के माफिक। जिन्ने चोरी की है उन्होंने भी लभना, जो उन्होंने दूजा लभना वो भी इत्थे लिखे है, ते दादा प्याले का भी काम होना जो, क्योंकि उसका भी लिखे है। लेकिन हर एक के काम के माफिक देने के लिए उसके क्या है, और उसने कहा वो अल्फा और क्या है, ओमेगा है। क्या मतलब है? ये यूनानी जुबान के वो दो लफ्ज हैं, अलफ और जैसे हमारी ये होती है, इसका मतलब क्या है, वो अजली भी है और वो क्या है, अबदी भी है, और वो उसका शुरू भी थे आखिर हो, ये सब कुछ। कौन है? कौन जी? यस्सु नासरी है। कौन है? इसीलिए आज एक तंजीम निकली हुई है, उसको कहते हैं मसैनिक जूद। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं नाल ईदा भी मनाओ, जो 7 ईदे वो मनाते थे, 5-7 ईदे वैसे वो भी मनाओ, और भी कई काम करते थे। वो जो है वो पुराने वक्त की मूसा की शरीयत के मुताबिक वो क्या करते थे, और आज बड़ी इत्थे ते नहीं शायद इन्नी, लेकिन कराची च बड़ी मुतहरक है। उन्हें इंज दे बच्चे छड़े ने कि लोग होर ना वेखण ते बच्चियां ते कोई ना कोई डिग पे ते किसी तरीके उन्होंने की किया जाए, ट्रैप किया जाए। लेकिन सुन लीजिए, हमारा यस्सु अबदी भी है, अजली भी है, वो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। हमें अभी किसी की जरूरत, और उसका कफारा भी मुकम्मल कफारा है, उसकी कुर्बानी भी मुकम्मल कुर्बानी है। उसके बाद हमें किसी कुर्बानी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फाइनल कुर्बानी है। वो अल्फा भी है और क्या है, ओमेगा भी है, और वो आने वाला है। कौन आने वाला है? यस्सु आने वाला है, और जिदे कोल यस्सु ओदे को सब कुछ। आमीन। कल वो गीत गाउंडे सी सानू के सियाणियां दी ते खोरे की पता नहीं क्या, मुझे गीत ही नहीं आता, तो वो गा रहे थे कल उधर से, तो मैं क्या बिल्कुल ठीक गा रहे ने। ना कोई है तेरे की करना, हाँ तो जमील में निकल गया, तो कोई बात नहीं है। तो वो अल्फा, अच्छा अल्फा और क्या है, ओमेगा, अव्वल और आखिर। अव्वल भी कौन है, और इब्तिदा। आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मुबारक है वो जो अपने जामे। अच्छा, बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील में कुछ मुबारकबादियां लिखी, लेकिन 7 मुबारकबादियां मुकाशफा की किताब में भी। पहली मुबारकबादी आपको मिलेगी, मुबारक है जिस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और क्या करने वाला है, सुनने वाला है। वो शख्स क्या है, मुबारक है। और फिर जो है आप देखते हैं कि इसी मुकाशफा की किताब के 14वें बाब की 13वीं आयत पढ़ते हैं, तो लिखा है, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में क्या करते हैं, मरते हैं। जब किसी जगह मुर्दे मुबारक नहीं जो, लेकिन मसीह च मरन वाला मुर्दा मुबारक। जिंदे दी तो और ही गल है, उत्थे मुर्दा भी की जो मुबारक है। और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है 16वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, जागते
رہو، اور وہاں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے، کیونکہ اس کو بھی مبارک کہا گیا ہے۔ 19ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ برے کی شادی آپ پہنچی ہے جو اس کے لیے تیار ہے۔ اور 16ویں جو 20ویں باب کی جو ہے وہ 6ٹھی آیت میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں کیا ہوں گے، شریک ہوں گے۔ اور پھر ہم نے یہاں پڑھا مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے، اس کا ایک مطلب یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے مبارک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جامے دھو لیے ہوئے ہیں۔ کیا کر لیے ہوئے ہیں؟ یعنی جو ابھی رہ گئے ہیں وہ دھو لے، اور جنہوں نے کیا کر لیے ہوئے ہیں، دھو لیے ہوئے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں، مبارک ہیں۔ اور جامے دھونے سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی زندگی یسوع ناصری کو دے دی ہے، وہ شخص مبارک ہے۔ وہ زمین پر غریب ہو، کمزور ہو، کسی چیز کی کمی ہو، لیکن یسوع کی نظر میں وہ شخص مبارک شخص ہے۔ آمین۔ جس نے اپنے جامے دھو لیے ہیں۔ اس لیے میں آج شام کہوں گا اگر آج کسی نے توبہ نہیں کی، اپنے جامے نہیں دھوئے، وہ دھو لے، کیونکہ وہ شخص مبارک بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا وہ؟ کون؟ گھر والے انہوں پاویں ایویں ہی سمجھی، کسی نے دسیا ہے فلانا بھائی جی پرستار نہ نہیں دسنا، آندھا ہے میں ایویں اچانک پہنچ گیا ایک اسٹیشن تے جہاں سے پٹرول ڈلواتے ہیں، میں ایویں اتھے پہنچ گیا تے مشہور پرستار تے نال چونڈی لا رہا سی۔ کی لا رہا سی؟ چونڈی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیڑا لا رہا سی۔ آندھا منو جویں ویکھ کے انہیں تھلے سٹیا، اگو او بھی پادری دا منڈا پادری سی، دھیان ہو دا بھی سی۔ آندھا لے بھی انہیں بیڑا لایا ہی، انہیں کی لایا ہی؟ بیڑا۔ انہاں دا بھی اگے ذکر ہے۔ لیکن یاد رہے خدا کا کلام کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے کیا کرتے ہیں۔ اور جب میں اس کو پڑھ رہا تھا میرا دل خوشی سے لبریز تھا، اور وہ یہ لکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا کیا پائیں گے۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا میں نے کہا آدم اس درخت میں سے کچھ کھانا چاہتا، وہ بھی بلائی تھی خدا کی، کیونکہ اگر وہ کھا لیتا تو ہمیشہ تک کیا رہتا۔ لیکن یاد رہے وہ تو اس درخت تک نہیں پہنچا، لیکن جتنوں نے اپنے جامے دھو لیے ہیں وہ زندگی کے درخت کے پاس کیا کریں گے، پہنچ جائیں گے، اور اس کا پھل۔ اور کئی لوگ پھر کہیں گے بھائی جو درخت کیڑا سی، وہ میں چھڈ یار کیڑا سی، تو اس درخت جو کھانا ہے تینوں سارا کچھ کی لگ جانا ہے، پتہ لگ جانا ہے کہ وہ درخت کیڑا سی، زندگی کا درخت۔ کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ کیا لکھا ہے جی؟ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا کیا پائیں گے؟ کیا پائیں گے؟ زندگی کے درخت کا پاس آنے کا کیا پائیں گے؟ اور اس کو 22ویں باب میں اس درخت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس درخت کو کتنے پھل لگیں گے۔ اب ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے اس کی طرف، لیکن یاد رہے اس زندگی کے درخت کے پاس بھی آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ لکھا ہے ان دروازوں سے شہر میں کیا ہوں گے؟ کس میں ہوں گے جی؟ شہر میں۔ ہن میں تانوں دسن لگا بھی یہ شہر کیڑا جی جدی ساڈے کو سٹیزن شپ پہ کی ہے۔ ہاللویا۔ آج کئی کہندے نے میرے کچے مکان نے پائی جی دعا کرو پکے ہو جانا، اور میں کہا ویکھو کتے وہ مکاناں نو، آؤ تانوں سیر کرائیے اس مکان دی، یسوع جلد آ رہا ہے تانوں اے دے چ لین لے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، بلکہ کسی کا میں وہ دیکھ رہا تھا اس کا جو ہے آرٹیکل، اس میں اس نے کہا کہ یار میں حیران ہو گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا 6 دن میں خدا نے ساری کائنات کو بنا دیا، بنا دیتا کتنے دن؟ پھر 7ویں دن کیا کیا اس نے؟ آرام کیا۔ لیکن جب یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے کیا کر رہا ہوں، آج 2000 سال ہو گئے ہیں، ایڈی خوبصورت کائنات
किन्ने दिनां च बन गई, लेकिन वो मकान जिहड़े बनन डे ने वो जारी काम है। कितनी खूबसूरती होएगी, क्या कमाल होएगा उहदे च। इन्नी कायनात, ऐसी खूबसूरत कायनात, कभी आप जाएं मरी को, वहां स्वाद को, कई जगहों पर आप जाएं और बड़े कीमती ते जिहड़े मुल्क तो किते बाहर जाओ तो फिर कमाल दा काम जो। फिर वो मैं तो कालियां दा मुल्क वेख के हैरान हो गया। मैं आखो भाई उत्तों काले, अंदरों इन्हां दा वेखो कमाल, कितनी इन्नी सफाई उन्हां, कमाल दा काम। और एक किते किते मिट्टी नहीं उन्हां को, आपकी काले ते मिट्टी कोई नहीं होती ते बीमार भी कोई नहीं। मैं उन्होंने पूछा भारी साहब नूं हॉस्पिटलों की सुनाओ, आंदे ने साडे हॉस्पिटल खाली, साडे हॉस्पिटल। मैं अपने साथियों ने कहा आओ यार स्टोर तो एक दो चेक करिए मेडिकल। हमने बकायदा स्टोरों पर जो है, एक नहीं दो तीन स्टोरों पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की तो वेख्या तो कोई दवाई लैन वाला ही कोई नहीं। मैं क्या किते कराची आके वेखो, वो मैं ना तुसी दवाई लैन जाओ, मैं रिजॉइस रो अच्छा आधा घंटा, मैं ना जो तू तो घंटा ला के आ जाना कि आंदा पापा जी कभी जाके वेखियो, उथे वारी ही नहीं आउंदी। की है गोलियां दे अन्ने अन्ने आने, लेकिन इतनी सफाई, इतना खूबसूरत। वो हमें कुछ जगहों पर लेके गए, मैं वेंदा ही रह गया, पर ये तो कुछ भी नहीं जरा यस्सु नासरी हमें लेकर जा रहा है यरूशलेम में, उसकी क्या खूबसूरती है। और वो लेने आ रहा है आपको, इसलिए ईमानदारों दिलेर हो जाओ, ईमानदारों दिलेर हो जाओ। क्या खूबसूरत शहर है, आओ इस शहर की थोड़ी सी सैर करें। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है, खुदा का कलाम बड़ा खूबसूरत जो है इन बातों को पेश करता है। लिखा है खुदा के कलाम में 10वीं आयत में लिखा है, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस में यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया, और उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी यशव की दिया। तो एक पत्थर साढ़े उथे एक बाबा है तो कहता आ पत्थर बड़े महंगे ने। मैं क्या छड़ यार तो महंगे, मैनू भी आंदा भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ते ना जेड़ा ना नीलम पत्थर की जड़ी जरूरत है, मुझे वैसे पसंद है पर मैंने पहना नहीं कभी। तो वो कहता है ये बड़ा महंगा पत्थर है, और मैं आख्या जी सानू महंगे पत्थरों की ना दसो, जिथे असीं जाना है ना वो साडे मकान ही कीमती पत्थरों के किते ने, कीमती पत्थरों दे ने। और खुदावंद यीशु मसीह आपको लेने के लिए क्या कर रहा है, हम आज आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज लोग कहेंगे नहीं भाई जी बड़े भंगड़े पाउंदे जो, कई तनकीद भी बाहर जाके करनी है। अज वेख्या से किन्ने भंगड़े, मैं क्या तुसी करवा तनकीद जो असीं उत्ते वेख्या ना उन्हां मकानां च, ते फिर तुसी सड़े ते फिर तुहानूं की होना है। एक शुरू च ना गीत इत्थे हुंदा सी ते वो कहते असीं गाउंदे हुंदे सां, उदों असीं नवीं नवीं तौबा कीते, असां आसमान ते जाना ते दुख। अब मैं एक बुजुर्ग है नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़ता सी, अब तो खुदा के पास चला गया, कहता सी मैं इन्होंने पाइयां नूं पुछना है ये कितनों दी चले जाएंगे कसमाना के उत्ते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अगर आज भी किसी को मगालता है, आज भी किसी को है, तो यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो दूसरी आमद में आ रहा है हमें लेने के लिए और हमें कीमती मकान देने के लिए तैयार है। आमीन। और क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, लिखा है वो शहर का क्या हाल होगा। लिखा है खुदा के कलाम में उस शहर की शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 ताला लाउण दी। चोर तो होने ही नहीं, फिर भी की बैठे ने है। अज किसी ने फरिश्ता नजर आ जी तो लगना भाई जी सानू फरिश्ते नजर आते नहीं, पर की है
इत्थे दरवाज़ियां दे अगे की बैठे ने ईमानदारों। क्या ईमानदार की शान है जो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, जो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे देता है। मैं आज कहना चाहता हूँ, अगर आप गरीब हैं, अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप दुख भी सह रहे हैं, लेकिन कहीं अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दें तो आपकी बाकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और मैं आज आपको ये भी बताऊं, सुनो गौर से, लोगों को मजाक करने दो, लोगों को। अच्छा तुसी ते मजाक सही कुछ नहीं, जेड़े मजाक असी सहे ने। हुण ते भाइयों का भी बोल बाला है, पर जेड़ा दौर साडा सी, मुझे याद पड़ता है, मैं कई दफ़ा अपने बच्चों को बताता हूँ, मैं कई हफ्ते अपने मफरल ऐसे लगाता था, जिधर जाना उन्होंने ऐसिया गंदियां गल्लां करनियां कि मैं किसी को मुंडा सा मैनू ट्रैप करना, खास तौर पे कोई ना कोई गल करनी है। ऐसी आजमाइशें भी मुझ पर जो है वो आई हैं, खुद आजमाइशें खड़ी कीतियां, खुद आजमाइशें खड़ी की हैं, लेकिन यीशु नासरी हमारे साथ है। आमीन आमीन आमीन। और मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, बेटे बेटियों को कहना चाहता हूँ, आजमाइशें आपके लिए खड़ी हो सकती हैं, लेकिन आप उन पर गालिब आएं, क्योंकि आपका मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि यीशु नासरी आ रहा है। आमीन आमीन। मैं उन हालात की तरफ नहीं गया कि जब वो आएगा तो उससे पहले क्या क्या वाकया होना पड़ेगा, लड़ाइयाँ क्या होंगी, ये क्या होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं, बाइबल कहती है उससे पहले गुमराही क्या होगी। गुमराही क्या होती है? राह का गुम हो जाना। क्या है? गुमराही। गुमराही बड़ी जो, और लिखा भी हुआ है बाइबल में कि ईमानदार भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, है ऐसी चीजें उनके सामने आएंगी। मैंने 2023 की 22 की रिपोर्ट या पढ़ी तो आपकी सबसे ज्यादा जो जिनसी ख्वाहिशात की फिल्में, लस्ट की, इसमें कौन नंबर 1 था? पाकिस्तान नंबर 1 था। दुनिया में कितने मालिक हैं, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है कि लोग वैसे गुनाह ना करें तो वो इसके साथ क्या करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो ये भी वार्न किया जाता है कि बहुत दफ़ा शैतान इन चीज़ों से भी आपको क्या करता है, गुमराह करता है, और लोग जो हैं इन चीज़ों में खोए रहते हैं और बहुत दफ़ा अपनी ज़िंदगी को वो ज़ाया करते हैं। लेकिन ये शहर बहुत खूबसूरत है। रोड इसके कैसे हैं? इत्थे बंदा कादे लिए मारता रहिंदा जो है? सोने ਲਈ बाजियां दी ने किते 2 कांटे ही बना है, थोड़ा जिहा की हो जे सोना हो जे। और कई दियां लड़ाइयां सोने तो पईयां च। और मैं कहा यीशु नासरी को दिल दे दो, वो आ रहा है, लेने के लिए आपको आ रहा है। वहां रोड ही जो है वो सोने के होंगे, और ये होगा आप सोने के ऊपर पांव रखेंगे। आमीन आमीन। आ जाओ, सोने के ऊपर पांव रखेंगे। क्या खूबसूरती होगी, क्या जलाल होगा। ईमानदारों, सोना किथे होएगा? एक दिन मैं कलाम सुना रहा सा, 72 ज़बूर थे, तो उहदे विच दाऊद ने दुआ की है अपने बेटे सुलेमान के लिए। तो मैं एक दिन क्या, उन्हें सोने की भी दुआ की थी कि सबा और सीबा के लोग क्या करेंगे, तेरे लिए क्या लाएंगे। मैं सोने नू वेखण दिया हाँ किन्ना, तो टना के हिसाब न से किन्ना सोना जो है उसके पास था। उसके सारे बर्तन सोने के थे, उसके जो वेपन थे उन पर सोना था, उनका जो बना था उसका तख्त वो हाथी दांत का था, और ऊपर क्या मंडा हुआ था, सोना मंडा हुआ था। और लिखा है उसके वक्त में सोने की कोई, लेकिन उदों में सोना घट साजे।
जदों यसु नासरी ने आना है तो ईमानदारा को तो कई ज्यादा सोना होना जो उन्होंने पैर अज एवं 2-2 4-4 रुपए लिए झूठ फरेब पता नहीं की मारन दिया तो जिगर उतों वाप रह जाइए की कहिए रह जाइए क्योंकि वो 10 कुवारियां भी 5 भी विच है सन अज वो तरफ तो नहीं जावांगे लेकिन वो रह गई यसु नासरी किसी वक्त भी आने वाला है वो हर एक के काम के माफ देने के लिए उसके क्या है लेकिन ईमानदारों के लिए रास्तबाजों के लिए ये खूबसूरत जो है वो उसके पास जगह है। और अगर आप 21वें बाब की पहली आयत पढ़े तो लिखा है फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा और पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही ए जमीन ते कई रोड़े गोड़े जो ते आसमान भी लिखा ना जरामे फलक भी उसकी शिद्दत हरारत की शिद्दत से क्या करेगा पिघल जाएगा लेकिन फिर एक नया आसमान और नई क्या होगी जमीन होगी जिसमें आपको बसाया जाएगा जब यसु नासरी आएगा आपको लेने के लिए आमीन आमीन आप तैयार हैं आप तैयार हैं तैयार हैं भावें कितना दुख होण भावें मुसीबत होण भावें परेशानियां होण वक्त का इंतजार करो एक दिन यसु ने आ जाना जो ते जेड़े गल्लां करदे ने उन्हां कहना ओ उड़ गई आओ उड़ गया ही असीं कहिंदे सां असीं उदों नूं समझदे सां जिवें लाजर नूं कोई भी नहीं सी समझदा लाजर नूं तो कई साल जिथे ने लेकिन जब यसु जो है वो बाप के पास गया तो उसको एक दर्जा मिला। इसी तरह खुदावंद ने आपके लिए लिखा है क्योंकि वो जल्द आने वाला है और लिखा है फिर उसने शहरे मुकद्दस में नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास और उसने दुल्हन की मानद क्या था जिसने अपने शोहर के लिए क्या किया हो और ये वो जगह है जहां इथे की नहीं होएगा क्या ला होगा ना रोना हो जेड़े अखां दे आंसू जो आज बंदा कई रोंदा है क्या करता है कई दे इंज दे भी रोंदे ने जेड़ा नाम ही रोना होवे। मैं दुआ कर रहा था अभी परसों चौथ की बात है तो एक बीबी रोन दी मैं ये पुरानी गवाही भी है मैं आख्या भी क्या हुआ इसको तुझी अम्मा भी नाल थोड़ी थोड़ी ठिणके क्या हुआ ये औलाद नहीं तो मैं नहीं पूछा जो मेरे नाल पादरी सी उन्हें पूछा जिसने बुलाया ये कितों शादी हुई है आंधी 6 महीने मतलब कई तो एवं ही रोंदे रहते ने ना वो मैं क्या वक्त तो आने दो क्यों काले पै गए हो हमारे अंदर हम तेजी बड़ी करते हैं काले बहुत है हम जो है ना हर जगह जो है ना जल्दी हर चीज जो है वो जल्दी जल्दी काम जो है वो हो जाए लेकिन लिखा है वहां आंसू ना होंगे वहां मौत कितने प्यारों को उसने जुदा किया है लेकिन मौत भी क्या हो जाएगी ना मातम होगा ना आओ नाला होगा ना कोई दर्द होगा क्योंकि यसु नासरी अपने लोगों को लेने आएगा आमीन 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 आमीन। तो आप उस अच्छा चलो जी किन्ने ताली मारी है हालेलुया यसु नासरी आ रहा है। पौलुस कहता है हमारी जो सिटीजनशिप है वो शहर की है। फिलिपियों के खत के जब आप 3 बाब की 20वीं आयत पढ़ते हैं तो वो पौलुस कहता है हम इस जमीन के नहीं हैं हम मुसाफिर हैं परदेसी हैं लेकिन हम किस शहर के हैं अच्छा उथे किसी ईमानदार ऐसा होना है जिदे को मकान नहीं होना दस्यो जी है होएगा बिजली है बिजली की लोड़ को नहीं यसु की रोशनी होएगी उथे सूरज की भी उथे कोई नहीं
जरूरत ही नहीं होएगी, ना सोलर सिस्टम होएगा, ना सिस्टम होएगा, क्योंकि वहाँ यस्सु ही होना है। ओदी रोशनी नहीं, उन्हें की करना है, चमकना है उस शहर ने, और वहाँ रोशनी होगी। क्यों रोशनी होगी? क्योंकि वहाँ यस्सु मौजूद है, और वो जलाल से भरे हुए जो है। तो मैं कहता हूँ बदकिस्मत वो शख्स है जो जिंदगी में तौबा नहीं करता, जो खुदा को अपना दिल नहीं देता। उसे पता ही नहीं है कि कल को मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं क्या बन जाऊंगा, मैं क्या। जिनको आज लोग बातें करते हैं, कुछ उनके बारे में नहीं जानते, लोग बड़े गौर ना, और कभी कभी आपको हकीर भी समझा जाता है, लेकिन ना घबराइए, आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। आमीन। और यीशु मसीह किस लिए आ रहा है? क्या करने के लिए आ रहा है? ईमानदारों को क्या करने के लिए? लेकिन एक खुशखबरी के साथ एक अफसोस भी है, और वो क्या है? मुकाशफा की किताब का वही बात निकालिए। वहां लिखा है वो शहर में दाखिल होंगे, शहर हमने देखा, मगर कुत्ते। कौन जी? ये कुत्ते तो मुराद वो कुत्ते नहीं, एक कुत्तियां वाली जड़ी ख्वाहिश, खासकर लस्ट, जिनसी, बदखलाकी, अरल होना, ये कौन सी ख्वाहिश है? और कई लोग इन्हीं ख्वाहिशों के बायस यीशु मसीह को रद्द कर रहे हैं, वो यीशु को छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में लिखा है ये वहां दाखिल नहीं होंगे। ये नहीं कि किसी दे कार्ड ते लिखे है कि सैमसन, तो किथे हो जाएगा? अगर सैमसन की जिंदगी वाकई मसीह में हुई तो फिर वो क्या होगा? सिर्फ नाम का क्रिश्चियन होने से इसमें दाखिल नहीं होगा, क्योंकि वो होगा जो नई पैदाइश का तजर्बा पाके अपने जामे धोए हैं, और फिर अपने जामे की हिफाजत भी करता है। क्या करता है? वो क्या करेगा? वो दाखिल होगा, लेकिन कुत्ते वहां क्या नहीं होंगे? और कई लोग समझते नहीं भाई जी, जो असी नवे नवे सा तो कई सानू आंदे ओ भाई जी तुसी दुआवां दुआ करया करो, असीं तुहाडा पहुंचा फड़ के ते उत्ते। मैं कम से कम मैं नहीं फड़न देना, पहुंचा फड़न ही नहीं देना उन्हें। मैं नहीं तो क्या करूं, मैं चाहता हूं सारे। कश्ती का दरवाजा किसने बंद किया था? है? अगर नूह करता तो कईयों को उस पर क्या होना था? तरास। वो असी दाखिल हो जाना सी, ये बाबे ने सानू दाखिल नहीं होने देता। सानू तो रहिंदे ही तरास ने, सानू रहिंदे ही तरास ने। कोई मीटिंग दा तरास, कोई टाइम दा तरास, किसे दा तरास। लेकिन यीशु ने खुद ही बाहर से क्या कर दिया? ते जदों आसमान ते भी जाना है, उदों पहुंचे पूछे कोनी जो फड़े जाने। पहुंचे पूछे जे कश्ती च नहीं ना दाखिल हो गए जोगे रहे, ते फड़े पहुंचे भी को नहीं जाने। कि जाने ने नहीं जाने। ये सोच लो, ये मजाक अपने अंदरों कट दो, ते अपनी जिंदगी किनू दे दो? यीशु नू दे दो। क्योंकि वहां कुत्ते, और फिर क्या है? जादूगर है, जादूगर है। कई इन्हां वाल भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते ने, ते इन्हां नू मनण वाले इन्हां भी कोई नहीं जो दाखिल होना। क्यों होना है? कदी कदी कोई शै गवाच दे ना, तो कई बाजियां होंदा है किसी सियाने को जाओ। ईमानदार भी विच विच की कहन लग पैंदे ने, ते चले जाओ। लिखा है गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। तो ये कभी वहाँ दाखिल नहीं होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बहुत अच्छा मज़मून है। एक दिन में तो ये बातें नहीं होती, क्योंकि इसके कई पहलू हैं आमदे सानी के। लेकिन मेरे अंदर जो बोझ खुदा ने रखा है, मैं वो आपको कहना चाहता हूँ। वहाँ ना जादूगर, ना कुत्ते, ना हरामकार, ना खूनी, ना झूठी बात का क्या करने वाला, करने वाला, ना क्या उसको पसंद करने वाला, उसमें क्या ना होगा?
داخل نہ ہوگا تو یہ سمسیات ہو رہا ہے، خوشی بھی ہے، ایمانداروں کے لیے بڑی خوشی ہے، کیونکہ آگے لکھا ہے روح اور دلہن کہے کہ کیا کر آ، کہ جدن آ گیا نا دکھ سارے ہی مٹ جانے کہ شوگر بی پی بولو تو صحیح ہے، رولے میں پیسے کسی چیز کی کیا کوئی کمی نہیں تے دوائیاں شوائیاں پھر تسی کہہ سکتے دوائیاں سے نہیں کھانی ہون نہیں گونا ہون نہیں گونا ایک بندہ گاؤں دیا سی کی دوائیاں سا نہیں کھانیاں تے ادھوں گردے دی درد ہو گئی تے جویں گردے دی درد ہو گئی تے ساؤٹ سپیکر دے وچ سچی گل دسن ڈیا کہندے بھائی جی ہون دوائیاں کھانیاں تو سٹیٹمنٹ ہی بدل گئی یہ گوجرے کا واقعہ جو پوچھ لینا سیلز تو یاد رہے کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہاں یہ لوگ داخل نہ ہوں گے اور خداوند یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کا داخلہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے جامے دھو لیے ہیں خداوند ان کو لینے کے لیے کیا کر رہا ہے آ رہا ہے اور ان کا مستقبل بہت کیا ہے روشن ہے اور ایک اور بات بھی یہاں لکھی ہوئی ہے جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں اور لکھا ہے جو پیاسا ہو وہ بھی آئے کیا ہے یہ دے چھو اور بھی شامل ہو سکتے جو کون کون کیا ہے کیا ہے کیا ہے اچھا کئی لوگ میٹنگ چاہن گے جنہی دیر پرستشن دی کنی پرستش ہوئے گی وہ کی کرنگے ہے خاص طور پر جدو تسی کسے مشہور سنگر نو بلا لیں گے ہو تو لوگ کدوں تک ہوں دینے ورشپ تک وہ دے بعد کتنے لوگ اکرم صاحب اٹھ چاندے نے ادھے تے لوگاں چکے ہو جاندے نے کیونکہ اندر کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے یہاں لکھا ہے وہ بھی آئے جو کیا ہو پیاسا ہو اچھا پیاس کی بڑی بات ہے آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کتنے لوگ روحانیت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے پیاس ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے پیاس جو اتنی آپ کے اندر پیاس ہوگی اندر تڑپ ہوگی مجھے کئی سال ہوئے پاسٹر سالم کی ایک بات یاد آتی ہے میں گواہی اپنی سنانے لگا تھا میں کہا نہیں سالم دا چرچے دی ہوئی سنا یہ ہمارے پاس چلے گئے میں بھی اس وقت پڑھ رہا تھا تو بھائی انہوں نے کر لی پہلے تے خوب سنکنا چھٹکا پیندے تھی تے میں دعا تے جانا انہاں خوب پیڑیاں پونیاں پھر اس نے جو ہے مجھے دیکھا ساتھ آتے رہا ایک دن بڑا بیٹھا ہوا داس کمزور سا تھا تو بیٹھا ہوا میں کہا بھی تو خوش ہونا چاہنا ہے خوش ہے اندر نہیں تو میں کہا جی خوشی چاہی دیا تو یسوع نو دل دے دے اس نے اپنا دل دے دیا آج دیکھو سالم اندھی گئی ہے کیوں ایک دن اس نے اپنا کیا کر دیا پھر میرے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تو یہ لاہور شفٹ ہو گئے میں کراچی رہ گیا لیکن یہ لاہور شفٹ ہو گئے وہاں یہ درزی کا تھوڑی دیر کام سیکھ رہے تھے اور جب کام سیکھ رہے تھے تو انہیں 40 روزے رکھ لیں نہ کوئی اگے دا پتہ نہ لیکن پیاس 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 ایک دن جو ہے وہ ایف سی کالج میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور باہر سے ایک انگریز آئی یہ پیچھے بیٹھا سے تیل پتہ جدو سٹرگل دے دین ہوں دینے تو بندے دے اندر کنفیڈنس بھی نہیں بڑا جہاں بندہ انج کر کے بیٹھا کہ وہ کلام سناؤں گے بھائی الیکسینڈر ہمارے جو ہے اس نے ترجمہ کر رہے تھے وہ ایک دم لیڈیز جو ہے وہ پیچھے گئی اور اس نے جو پہلی بات کہی تیرے دل میں میری پیاس ہے یہی ہے آج تک آپ کی بائبل میں لکھا ہو تیرے دل میں میری
प्यास है। रूहानियत में भी तरक्की वो करते हैं जिनके अंदर क्या होती है। अच्छा मैं सच्ची बताऊं कि अब मेरी खिदमत खासकर खादमों में हो गई है अपने, और मुझे कई टीवी चैनल पर भी जाना पड़ता है, खादमों के घरों में जाना पड़ता है, और वो मुझे बुलाते हैं दुआ के लिए, और वहाँ जो है वो जब बुलाते हैं तो मेरी इसलिए भी मुझे चर्च को टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं उनके लिए भी कोई ना कोई टाइम जो मजबूर फिर करते हैं। लेकिन मैं अजय भी अपनी रूहानी जिंदगी तो सैटिस्फाई नहीं, और मैनू पता है मेरी जिंदगी च खुदा ने एक होर रिवाइवल लियाना है, और उसके लिए मैंने शुरू कर दिया है हर रोज अपने चर्च में 2 से 3 घंटे लोग दुआ कर रहे हैं। 9 से 12 बजे हमारी दुआ होती है, क्योंकि लोग लेट आते हैं, और कोई दिन नहीं जब दुआ, और मैंने कहा है कि एक दिन यहाँ हम लोग दुआ करने के लिए आएंगे, यहाँ हम एक दुआ का अच्छा सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे, और लोग कहेंगे कि फलां जगह जाओ, जदों जाओगे तो दिल दी मुरादां पूरियां हो जाएंगी। ये हो सकता कि नहीं हो सकता है? मैं तुहानू हौसला देना चाहना है, और कोई टारगेट रखो अपने अंदर, ईमानदारो तुसी भी, कि मैं यस्सू को आप पाउना है, तो वेखो फिर तुहानू मिलेगा। जो कौन हो, क्या हो, है प्यासा हो। अच्छा इसकी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, थकते नहीं गए? एग्जाम्पल इसके देते हैं, कुछ खोजते नहीं, हौले नहीं, जे जरा सख्त किस्म के है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ मैं ਹੋਵਾਂ कोई होर भी बाप होए ते ਉਹ ਹੁੰਦਾ यार ਇਹਨੇ ਰੁੱਸ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ, ਇਹने आ खा के जगन। हमारे घर में भी हमारी एक बच्ची है, उन्हें मैनू फड़ लेना, पापा तू ही मैनू मशहूर कर आए। तो वो चाहती है जो हमारे घर में पके मेरी मर्जी ना होवे। वो हाले सुती हुंदी है, ते वो कहते ने कि क्या पकाना है, वो पूछ लो, फिर उन्हें नहीं खाना। मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, जब आप खुदावंद की हज़ूरी में बैठ जाते हैं, प्यासे होते हैं, तो खुदा आपको भर देता है। आमीन, भर देता है। किनको? कई 2 दिन दुआ करनगे, चौथे दिन कई नहीं पता, यार मैं दुआ कर भाई जी मेरे लिए दुआ करियो, मैं रवानी हुंदा जावां, रवानी हुंदा जावां, ते 4 दिन पता है मरी फिरन डिया आई, ते फिरन भी पता नहीं कदे ना डिया आई, ते रवानी होन डिया आई। एक ही होन डिया। तो जो प्यासे होते हैं वो प्यास अपने अंदर रखते हैं, मेरे दिल में है, और ये चर्च की प्यास बढ़ती जाए, और खुदा के हज़ूरी में अपना दिल अंडेलते जाए, और खुदा अपनी कुदरत से आपको, एक तो इसका मतलब ये है कि खुदा आपको इस तरह भर सकता है। आप किसी चीज़ में भी क्या करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आपके दिल में क्या होती है, देखा ना कई वाजा इंजदा ही सीखते हैं, उन्होंने आंदे ने भाई जी टू टू, बंदा क्या है टू टू, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया होता है कई कलाम भी इन्ना की सीखिया होता है, वो फिर क्या करते हैं, तो फिर वो मसला जो है इस तरह। लेकिन जिस बंदे के अंदर प्यास होगी, खुदा उसे अपनी कुदरत से क्या करेगा, बढ़ेगा। आपने देखा है जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, लगे रहते हैं, एक दिन पता चलता है वो यार वो पास हो गया, जो बता उसने कामयाबी हासिल कर ली है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कई दफ़ा फेल हुए हैं, लेकिन वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, तो मैं उसे आबे हयात से क्या करूँगा। ये ज़िंदगी है। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी खुदावंद को, इसको खुदा के खादिम कहते हैं आखिरी दावतनामा। क्या कहते हैं? देखो यसु मसीह इन्नी मुहब्बत करदा जो कि आने तो पहलों आखिरी भी दावतनामा दे रहा है कि कोई बंदा ना रह जाए,
लिखा ना वो तहम्मल करके क्या किया हुआ है, ठहरा हुआ है। वो किसी की क्या नहीं चाहता, हलाकत नहीं चाहता। वो चाहते हर एक की तौबा तक क्या पहुंचे, नौबत पहुंचे। वो आखिरी दावत भी दे रहा है, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। इससे पहले कि मैं आ जाऊं वो क्या करे, मेरे पास आए। और ਇਹਦਾ मतलब है ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਘਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਵਸਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਹੋਏ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕੇ 'ਚ। ਆਮੀਨ आमीन 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 आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। घबराएं नहीं, खौफ ना खाएं, बेदिल ना हो, क्योंकि वह जल्द आ रहा है। आमीन। और क्यों आ रहा है? वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। आज कलीसिया दुखों में है, परेशानियों में है, मुश्किलात में है, प्रॉब्लम्स में है, कई किस्म के दुखों में है, लेकिन वो आपको लेने के लिए आ रहा है ताकि आपके सारे दुख क्या करें। मैं नौजवानों को कहूँगा, नौजवानों डटे रहो। हर तरह का फजल खुदा आप पर कसरत से करेगा। आमीन। इत्थे भी मिलेगा, इत्थे भी मिलेगा, पर प्यास होए, प्यास होवे दा ना होवे। प्यास होवे, जे दा लाउणेगे ते रह जाओगे दा जोगे, फिर तुहाडा गुजारा किते ना होना जो दा दा पेना, किते ना दा दा पेना। वो मैनू कही आंदे ने, वो बाबा जी मुझे वो कराची वाले सारे पास्टर कहते बाबा जी तुसी को गोरा शोरा नहीं घेरिया फिर भी तुसी हर वक्त खुशहाल रहिंदे हो। मैं क्या सी खुशहाल ही रहना है। तुहाडियां कुंडियां पईयां गोरियां ना, किहड़ियां ना, साडे कुंडा पिया गोरियां तो भी गोरे दे नाल, उत्ता पक्का कुंडा। किन्ना किन्ना पक्का कुंडा। एक बंदा आंदा मैनू किवें कुंडा पिया है। मैं आख्या जी कुंडा दसा, आंदा दसो। मैं जी मैं करन दिया हाँ दुआ। तो मैं आख्या यीशु माल चाहिए, माल चाहिए कि मैं दुआ दू करके उठिया तो एक बाजी दा इंग्लैंड कैनेडा तो फोन आ गया। किसी के थ्रू उसने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे पाजी बड़ा मसला हो गया। मैं की हो गया? वो 7 माह का बेटा है मेरे पेट पे और डॉक्टरों ने कहा उसका सर जो है वो नहीं बना। अच्छा एकदम मैं समझ आ गई भी इहदा सिर बन जाना जो, ते जिहड़ा मैं पैसा मंगने वाला बीबी ने देना जो। मैं खुदा के मजबे पर कह रहा हूँ। वो मैं उसको खादम को बात बताई, उसके लिए दुआ की। वो अगले माह जब गई उन्हें क्या भाई जी सिर ते बन गया है। वो 9 माह के बाद बच्चा जो है वो दुनिया में आ गया। बाजी मनु कहे हदिया कितना भेजा। मैं क्या होना सी भी पुराने बाबे हैं, मैं जी जिड्डा वड्डा मौजा जो ओना ही भेज दियो, ना नहीं दसो कितना ही भेज दो। फिर कैनेडा वाले तो कैनेडा वाले भेजना सी ना। फिर मैं उन्होंने दसिया खादम ने कि भाई ये आंदे जो कि कुंडे कई तो यस्सू नू कहना है कोई ना कोई बंदा आना जो तो की हो जाएगा। अभी मैं खालिद अमनाज के जो मीटिंग कर की है संडे को, पिछले संडे को हम इबादत कर रहे थे तो वो इबादत हो गई। मैनू कहने लगे वो बाजी बड़ी जो है ना हानी औरत है। मैं क्या चलो खुदा इनको बरकत दे। अजे दुआवां करनी डे बाजी दे अंदर पता नहीं कितों हाजरी हुई, वो ते किते पे मार दी हुई। मैं खड़ा वो ड्रम कर दी मेरे अगे डिगी। खैर उसको हुक्म दिया, वो आज़ाद हो गई। मैं कहा लै भी अब बाजी आई है टिकटा देन मनो।
आया जी हाँ इन्हें की देनी टिकट ते यस्सू दे हजूर माल मूल दी भी कमी कोई नहीं सिर्फ तुहाडा ध्यान है जे पुठे पासे नूं होए ते फिर उसे पासे इनू काटा मारो करके मारो ते इंज फिरकत करोगे पर रवोगे बारी क्योंकि लिखा कुत्ते हरामकार जादूगर क्या रहेंगे बाहर और कांटे लाने वाले वो बोलो तो तू ही केड़ा लाउंदे हो जोर ना बोलो तू ही केड़ा लाउंदे हो बोलो जोर ना क्या रहेंगे बाहर रहेंगे क्यों बाहर रहेंगे क्या मारते हैं क्या मारते हैं कांटे बार बार कांटे वाला कितने रहेगा अभी खालिद अहमनाज की एक बड़ी मीटिंग हमारे YMC बहुत बड़ा ग्राउंड है मैंने उनको 3-4 दफ़ा कहा भाई साहब एक किसी होर नूं दे दो मैं नहीं जो ये काम कर सक नहीं यार तुहाडा कराची में नाम बड़ा है तुसी बस ना टीम काम करेगी तुसी अपना नाम साथ नाल लाओ लोग आ जाएंगे कि जे बाबा किसी दी मीटिंग करा रहा है तो बंदा की है उसकी अपनी भी वर्थ है खुदा ने उसको इस्तेमाल कर रहा है और जो है हम कर रहे हैं तो मुझे कह रहे थे किन्ने पैसे भेजा मैं आख्या जी जदों तुसी आओगे ना उदों वेख लांगे अजे जिहड़ा काम होण दिया है होण दो और वजह क्या हुई है सुनो जब पिछली दफ़ा उन्होंने क्रूसेड किया तो इनू भी पैसे दे दिते ते मन्नू भी पैसे बसां दे इन्हें मैनू आके दस्या कि भाई साहब मैं तो पैसे ले लेने मैं आख्या वो मैनू भी देगे नहीं मैं गया मैं भाई जी फड़ो अपने पैसे साडा भी पैसा जाया करन दे बीमारी लाउण लगे जो साडे घर फिर कभी मुंडा बीमार तो कभी भाई जी दुआ करो इहदा लक नहीं उठदा मैं खेत कुंडी लगी टिड्डी लग जाती है ना फिर बंदे जो पुठे का मुझे नहीं पता ये बातें करनी थी कि नहीं बाप दे सानी तो गल्लां होणियां सी गल्लां किधर नूं चलियां गईयां ने लेकिन ये किसी की जरूरत जरूर है आमीन क्योंकि आमदे सानी पर यस्सू आ रहा है तो किते रह ना जाए वो आ रहा है जल्द वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है जल्द आ रहा है हर एक के काम के माफिक देने के लिए अजर उसके पास है ते वेखो वे भी ना काम करो कि एक पुठा काम करता है तो उदा कुछ नहीं होया मैं भी ना 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 वो जाने तो उसका काम जाने लेकिन आप अपने आप को साफ रखें कितने तैयार हैं यस्सू के आने पर खुश भी कितने हलाओ हजरात अगर खुश हो तो वेरी गुड मैं कहना अज नवे तौर पर ओदी आउण दी तैयारी च एक बारी फिर कहो खुदा मैं अपना होर अपने आप को तेरे लिए कमिट कर देना कहोगे जेड़ी को गर्द गुर्द पई है उत्ते है ओनू अज की कर दिए झाड़ दिए ते जिवें झाड़नी है ते मोजे भी हो जाने च आमीन ओ यस्सू नासरी सिर्फ आ ही नहीं रहा जब तक कलीसिया यहाँ मौजूद है वो मौजे भी कर रहा है आमीन वो करेगा मौजा करेगा मौजा करेगा मौजा करेगा मौजा आज ही मुझे फोन आया है फैसलाबाद से हमने एक बच्चे के लिए दुआ की थी उसको डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया था क्योंकि उसको कैंसर था और उसने कहा दुआ के बाद दोबारा टेस्ट हुआ है डॉक्टरों ने कहा कैंसर गया और वो मुझे बता रही थी बहन हमारी बेटी है इधर की है लेकिन वो कराची में रहती है और अब उसकी शादी हो गई फैसलाबाद तो वो कहती है कि डॉक्टरों ने कि टीम बैठी है कि केस कभी रिवर्स नहीं होया कि नहीं होया रिवर्स नहीं होया साडा यस्सू रिवर्स भी कर सकता वो आ रहा है आपको लेने के लिए कितने आज जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी नहीं दी वो दे दे उस अच्छे शहर में जाने के लिए जिथे ना दुख ना दर्द ना कोई और इतना खूबसूरत शहर जिसमें आपको लेने के लिए वो क्या कर रहा है आ रहा है और साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी ना दी आपने देखा है
वो क्या रहेंगे? मैं हाल एक गल छड़ दी है, लम्मा हो जाएगा, क्योंकि जिन्हां दा किताबे हयात च ना है ना होया वो कित्थे रह जाणगे? कित्थे रह जाणगे? तुहानूं पता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दी बुक के क्या उसको कहते हैं? गिनीज बुक। उन्होंने कहते ने उहदे च जिहदा नाम लिखिया हुंदा ना वो इंज चौड़ा होके तुरदा है, क्योंकि उहदा की हुंदा है जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड होंदा है। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आपको भी कहना चाहता है, असी उहदे नाम भी ज़्यादा खुशकिस्मत है क्योंकि साडा नाम किताबे हयात च लिखा। हालेलुया। अगर कोई आज लिखवाना चाहता है तो अपनी जिंदगी खुदा को दे दे। आमीन आमीन। तो वो बहन भाई जो आज दिल से खुदावंद को अपना आप देना चाहते हैं क्योंकि वो जल्द आ रहा है, वो अपना हाथ खुदावंद को दिखाएं दिलेरी से। जो आज अपनी जिंदगी खुदावंद के हवाले कर रहे हैं, हो सकता है किसी वक्त आपने की हो लेकिन आप पीछे हट गए हैं। नौजवानों, खास तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, और दे दो जिंदगी। कभी मैं भी नौजवान सा दे दी जिंदगी, तो वेख लो फिर वेख लो खुदा दे काम ते हो त्याडे ना भी इंज जाना च। आमीन आमीन। तो क्या नौजवानों आप अपनी जिंदगी देना चाहते हैं? उठो फिर अपने कदम च नौजवानों जो अपनी जिंदगी देना चाहते हैं। बेटियां भी उठे, वैसे भाई भी उठ सकते हैं जो नौजवान नहीं भी, समझो अपने आप को नौजवान, दे दो की जिंदगी खुदावंद की सूरी में। वो बहन भाई जो अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं क्योंकि वो जल्द आ रहा है, क्योंकि वो जल्द आ रहा। जिन्होंने तौबा करके पानी का बपतिस्मा ले लिया वो बह जाओ, लेकिन जो आज नए तौर पर अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहता है वो खड़ा हो। जिन्होंने आज तक अपने आप को, और मेरा एक और मशवरा मान लो, कभी याद करोगे जब पानी का बपतिस्मा नहीं जो लिया ले लो, त्यानू एदी नहीं जो बरकत का पता, एदी इन्नी बरकत जो जिन्हों तुम सोच ही नहीं सकते। आमीन आमीन। इन्नी यदि बरकत जो ये ले लो। बस मैं इन्ना ही कहांगा, गवाही नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरे को 13 गवाहियां जो पानी के बपतिस्मे के लिए। आमीन। आओ दुआ करिए खुदा की सूरी में।